Do it right. Once is enough. A very warm evening to Honorable Chairman Dr. C. A. Mahesh Bhiwandikar sir, respected Principal Ms. Sophia D'Souza Madam, respected Vice Principal Ms. Sama Khan in her absentia, teaching and non-teaching staff, and my dear students. I, Mrs. Rofika Joseph, welcome you all to the 19th Jnana Yoga series organized by the Department of Management Studies in collaboration with Achievers Business Incubator. Jnana Yoga series is an initiative by the Achievers Business Incubator through which it has decided to inspire all our students that yes, you can do it and nothing is possible, and wants to tell you that don't wait for opportunity but create it. Yes, students, you all are so blessed to be under the guidance of our Honorable Chairman Dr. C. A. Mahesh Bhiwandikar sir. And another one is our principal ma'am, who is always inspiring, and both of them are thinking about your future. Most important thing to be a successful achiever in life. Students, teachers have three loves. That is, the very first one is love of learning, love of learners, and the love of bringing the first two love together. Since last 18 sessions, we have witnessed many entrepreneurs who came on every Saturday to guide and show us a path of business journey. There will be no darkness in your life if you have the ray of light of your Guru's blessing and teaching to make you successful. And so I request all of you to join together and let us pray for our Gurus. Thank you, girls. Well, student speaker, because every session, whenever you came for your Jnana Yoga series, you have already saw a speaker. On the brochure, there was always a picture. But this time, there was nothing, right? It was something surprise, right? So, you might be thinking, इतना लेट already start हुआ है, क्या अभी तक गेस्ट आए नहीं हैं, और हमको वेट करना पड़ेगा, अभी गेस्ट किधर है, पता नहीं क्या, right? Yeah, all these questions are going in your mind. But you know, guests are already sitting with you, and I'm not going to give it. We have a young, dynamic principal who always has suspense and creates suspense for us. So I invite our principal ma'am to reveal our basics. So as we are in the 19th session of Jnana Yoga series, we have heard lot of speakers and madam said. But have we wondered there's one or two common things in there? What are the common things in all these 18 sessions जो भी हुए? क्या common था सारे speakers में? They were entrepreneurs, yes. Anything else? Okay, they were founders. ठीक है. So they all 18 were entrepreneurs, right? But यहाँ पे today our entrepreneurs have something different. That is, they are of your age, my dear friends. At your age, if a person can establish a business, so I think even we can do it, right? So revealing our three guests for today. First one is Mr. Raj Soni. I request him to please come on the dais. He is the founder of Chaitan's Production since 2002. Raj, I request you to please take seat. Our second speaker for today is Mr. Rupesh Bharti. He is the founder of Walk Magics and Tanish Tours and Travels. Our third speaker for today is Mr. Vinayak Bhangre, who is the owner and founder of Kingdom Digital since 2019. So I wish all my dear students on the dais
all the best for the interview. And of course, Chairman Sir, myself, and all your dear friends and teachers sitting in audience are really proud to have you all. These three students are from Department of Management, so we take pride. So that's the reason we have taken this initiative in our Nyan Yagna series to call someone as a common factor of your age and who sits with you in the lectures. So with this, I would like to say something. So what matters is not your age. You have to believe in yourself. You are never too young to build an empire, never too old to chase a dream. Entrepreneurship has no age limit. So all the best once again and happy learning everyone. Ambhavi from SYPMMC along with Shruti from FY to please conduct their interview section. Thank you. Hello everyone, good evening to all. I am Shambhavi Barkar from SYPMMC. Hello everyone, myself Shruti Bhadrao from FYPMS. So today we are here to take an interview of our three guests. So let's start with the first question. राज, मुझे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछना ये है कि आप आपके बारे में और आपके बिजनेस के बारे में कुछ बताओ जो हमारे दोस्तों को भी बताना। Hello. So I have a line to introduce myself कि परिंदा हूँ मैं खुले आसमान का, कैद रहूँ ऐसी मेरी किस्मत नहीं। परिंदा हूँ मैं खुले आसमान का, कैद रहूँ ऐसी मेरी किस्मत नहीं, और सपने दिखाकर भी उड़ने ना दी, ऐसा मेरा रब है। So I am Ransoli Desai. I am the founder of the Chai Terrace Production. And basically Chai Terrace Production focus करता है on creating content and for creating some commercial projects for different institutes or whatever जो भी brand expect करता है दूर लोगों से। And basically फिलहाल as per the name says the chai terrace, the chai basically उसका main focus है। तो as people love fresh tea, so we focus on creating fresh content. Thank you. Thank you, Raj. Now next question is for Rupesh. What about you, Rupesh? Can you introduce yourself to us? First of all, thank you so much, HMS College, Principal Ma'am, Principal Sir, and thanks to Ram Sir. उनकी वजह से आज यहाँ हूँ, इस कॉलेज में हूँ, and जो कॉलेज का सिस्टम है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। अगर आज आपने कर दी दे तो हो सकता है आपकी लाइफ बन जाए। नमस्कार, दिस इज रुपेश भारती, द फाउंडर एंड CEO ऑफ मॉप मैजिक एंड तनिष्का टूर्स एंड ट्रैवल। इसके अलावा मेरा जो है मैं क्रिप्टो इन्वेस्टर हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मॉप मैजिक का मतलब है ये मॉप पे बेस है। मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मॉप की, अभी अभी स्टार्ट हुई है। कुछ महीने पहले स्टार्ट किया मैंने। मॉप की मैन्युफैक्चर हर वैरायटी का हम करते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि ओला उबेर में मेरा इन्वेस्टमेंट है, 4 कैब्स है मेरी जो ओला उबेर में अभी रन कर रही है। एंड थर्ड, मैं क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ एंड अच्छा खासा रिटर्न है वहाँ से। थैंक यू सो मच, ये कुछ जानकारी है। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक करना चाहूँगा यूएन सर को, बिकॉज उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया था। यदि मेरा एक मतलब कि मेरा बैकआउट ये कि मैं एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट था IT से, फिर मैं कॉलेज के लिए देख रहा था। उस टाइम पे मेरा फर्स्ट मीटिंग यूएन सर के साथ हुआ था एट अग्रवाल कॉलेज। उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि दिस इज आवर कॉलेज ओनली, कम एंड जॉइन अस फॉर बेटर फ्यूचर। And today, really, I got that opportunity, and today I have made my great future. So, हमारा डिजिटल मार्केटिंग और साइबर सिक्योरिटी का एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जिसका नाम है ह्यूमन इंटीग्रेटर्स। वो फाउंडर और ओनर
वापस से डायरेक्ट कर दी एक पार्ट में, और अभी फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कोरिया में। थैंक यू विनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर राज। राज, ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ कि आपको ऐसा लगा कि आप बिजनेस करना चाहते हो? इट वॉज अबाउट लॉकडाउन। लॉकडाउन में जब पूरे मार्केट बंद थे, सिर्फ 2-3 मार्केट्स थे जो अच्छे खासे बेस पर थे। एक तो क्रिप्टो स्टॉक मार्केट का था, वो मेरे ऊपर से जाता है। तो सेकेंड वन वॉज माई फेवरेट, वीडियो प्रोडक्शन। ऑलमोस्ट लाइन में भी था, तो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। देयर आर वेरी फेमस कंपनीज जैसे रेड चिलीज है, प्राइम फोकस है, दे एंड साइड बाय साइड ऑन यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन देयर इज द वायरल फीवर जो काफ़ी फेमस है। तो वो कंपनीज ने मुझे काफ़ी हद तक इंस्पायर किया। मैंने उनके पुरानी स्टोरीज वगैरह देखी एंड यस दे इंस्पायर टू द मोस्ट। सो विनायक, आपका डिजिटल एंड साइबर का आपका है, तो इसमें आपको क्या ऐसे लगा कि ये स्टार्ट कर दो 2019 से? 2019 में कैसा था कि ऑनलाइन ग्रोथ बढ़ गया था। उस टाइम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब लोगों में बहुत पॉपुलर होने के लग गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बिजनेस को थोड़ा सा शेयर मोटिवेशन हो गया, आगे जाके यही यंगस्टर फ्यूचर है। तो एक फेज ऐसा है कि लॉकडाउन का उस टाइम पे फेज है, और उस टाइम पे सब लोग घर पे थे। तो उस टाइम पे हमने और सोचा, और जो हमारा प्लान था वो पूरा का पूरा सक्सेस हुआ। क्यों? तो यंगस्टर्स की वजह से। बिकॉज हर एक सेकेंड में यंगस्टर जिस टाइम पे कुछ भी सर्विस वगैरह हम लोग करते हैं, हम लोग को पेमेंट मिलता है, मीन्स एड पेमेंट्स मिलते हैं गूगल की तरफ से, फेसबुक की तरफ से। वाई? बिकॉज वी इन्फ्लुएंस द पीपल एंड वी शो यू दैट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस टाइम। थैंक यू विनायक। रुपेश, आप तो हमारे एज के हैं, तो आपने कैसा किया ये? वेल, आई वॉज इन 10th तब मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड जो मैं बिजनेस में पहला कदम था वो मेरा 10th में था। 10th मिडल था आई थिंक, तब मैंने मेरा बिजनेस का स्टार्टअप किया था। हुआ यूँ था कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे घर में। वहाँ पे 45,000 रुपीज़ पे करने थे पापा को क्लासेस में। सो वहाँ पे कुछ ना कुछ मैं सैडनेस देखा पापा का कि समथिंग लाइक मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, कि पापा के चेहरे पे जो उदासी था वो बहुत ज़्यादा हर्ट किया मुझे, और ऐसा लगा कि रुपेश कहीं ना कहीं रॉन्ग कर रहा है। देन उसके बाद मैंने ठान लिया उस टाइम पे कि मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, कुछ ना कुछ बनना है, और यही सही टाइम है और अभी करना है। मैं 10th के बाद डिपेंड नहीं रहा हूँ मेरे घर वालों के ऊपर। मैंने जितने 10th 11th FY BMS अभी FY BMS में जितने भी है, मैंने खुद का खर्चा निकाला है एंड सब कुछ मैंने खुद से खुद का किया है। तो उसके बाद मुझे रिग्रेट फील हुआ कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं डैड मॉम का पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। वो पैसे दे रहे हैं मुझे, क्लासेस जा रहा हूँ, बट वो पैसे का यूज नहीं कर पा रहा हूँ। 45,000 मीन्स एक पैसे का एक बोल सकते हैं कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं एंड हम ऐसे ही उड़ा रहे हैं, लाइक स्टडी नहीं कर रहे सही से। उनकी जो उम्मीद है कहीं ना कहीं हम वहाँ पे खड़े नहीं उतर रहे, हम नहीं वो कर पा रहे जो, बट वो फीस दे रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में फीस रेगुलर दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं बट दे रहे हैं। तो उस टाइम में मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं रुपेश रॉन्ग कर रहे हो आप, आपको सुधरने की ज़रूरत है। आई वॉज लाइक कि जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। मैं 10th में ऐसा स्टूडेंट था कि जो होगा देखा जाएगा, जैसा वैसा क्लासेस के नाम पे घूमने जाना एंड ऑल, मेरे अंदर भी वही था 10th तक। बट वो जो इंसिडेंट था वो चेंज कर दिया। मैंने फिर रिसर्च चालू की, मार्केट का रिसर्च किया कि बिजनेस क्या है एंड ऑल, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा था कि मुझे पहले तो मुझे डॉक्टर बनना था, क्योंकि सबने डाल दिया था कि इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर बनना है, क्योंकि आईटी फील्ड से बिलोंग मेरी जो फैमिली है आईटी फील्ड से। सो सबने ऐसा डाल दिया था कि नहीं, एक तो इंजीनियर बनना है नहीं तो डॉक्टर बनना है। तो दोनों में से चैलेंजेस था, तो मैंने चूज किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, रशिया जाके डिग्री लेना है एंड बाद में सेटल हो जाना है। बट 10th में ऐसे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए है ही नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। एंड फिर वहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। 10th में मैंने पहला कदम बिजनेस पे रखा, रिसर्च किया, 3 months रिसर्च किया, बट कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये फिनेंशियल कुछ पैसे नहीं है एंड उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करना वेरी टफ होता है। तो फिर वहाँ से फिर 3 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ घर बैठे।
देन उसके बाद मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैंने उसे ज्वाइन किया एंड ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे मैंने 6 मंथ वर्क किया। वहाँ से मेरी बिजनेस स्टार्टअप हुई एंड फिनेंशियल वगैरह, वहाँ से मेरा स्टार्टअप का जो जर्नी था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। सो अगेन रुपेश आपसे ये आपने जैसे बताया कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या ऐसे स्टेप्स लेने पड़े उसमें हार्ड कि नहीं मुझे ये करना ही है, करना पड़ेगा ऐसा कुछ? फर्स्ट वो जो चेहरा था डैड का वो मेरे लिए रिग्रेटिंग था, क्योंकि वो वैसा सेंटेंस देखा ही नहीं था मैंने उनके ऊपर। जब भी पैसे मांगा दे देते थे, गाड़ी मांगा दे देते थे एंड ऑल, जब भी जो भी डिमांड किया मुझे मिला है। बट वो जो उस दिन का जो चेहरा था वो बहुत ही ज़्यादा मेरे मन में बैठ गया कि ये चेहरा मेरे वजह से, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को हम धोखा दे रहे हैं, इसके वजह से ये वो चेहरा दिखा। तो फिर मैंने वहाँ से बोला नहीं, मुझे करना है तो करना है, खुद के दम पे करना है, मॉम डैड से 1 रुपये नहीं लेना है, उनका मेहनत का पैसा हम हमारे ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, हम खुद मेहनत करेंगे एंड खुद के ऊपर खर्चा करेंगे। एंड देन वहाँ से वो जो इंसिडेंट था वो मेरे अंदर एक ऐसा आग डाल दिया कि नहीं अब करना है तो करना है। उसके बाद जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की तो लगभग मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी, वेस्टिज हो गया एंड ऑल, बहुत रिसर्च किया था। उसके बाद कहीं तो जाके मुझे RCM करके कंपनी थी, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, उसमें ज्वाइन हुआ। वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद चैलेंजेस थे कि मेरा एज नहीं था, मेरा जो एज था वो 17 था, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मेरे नाम से कुछ भी हो नहीं सकता था। तो फिर मैंने मेरे मॉम का डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल लिया एंड वहाँ पे स्टिक किया एंड उनके नाम से ID स्टार्ट की एंड देन फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। जो 3 साल लगते हैं जिस 14-16% पे जाने के लिए, मैं वो 3 to 4 मंथ्स में वहाँ पे रीच हो गया। 3 से 4 साल में मैं वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ से रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था, प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल्स वहाँ से सीखे। 6 मंथ बाद मैंने कंपनी को ड्रॉप कर दिया, बिकॉज जो मेरा जो सपना था वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा था और उसे फुलफिल नहीं हो सकता था। देन वहाँ से मैंने ड्रॉप करके नेक्स्ट स्टेप लिया। देन फिर उसका आइडियाज एंड ऑल, क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत फिनेंशियल मैं हो चुका था। देन उसके बाद मैंने सेकेंड स्टेप किया। Wonderful, Rupesh. Vinayak, same question goes to you. Can you please share your experience with us? स्टार्टिंग बेसिक ऐसा था कि बिजनेस का एक इंटरफेस आया था, मीन्स लॉकडाउन में आया था और उसके पहले जो था मीन्स तब तक तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था 2019 और फेब का मंथ था। तो मार्च तक हम लोग को एक सबमिशन देना रहता है, तो वो सबमिशन हम लोग ने प्रोवाइड किया था। तो उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट कंपनी एंड्रास इंडिया सर्विसेज, जो आज का BC का टॉप माना जाता है, उस सर्विस कंपनी के साथ हमारा थोड़ा सा इश्यूज भी हुआ था। उनका टेक्स सॉल्यूशंस वगैरह थोड़ा मार्केट में लीक होना चालू हो गया था BSC में आने के बाद। फिर तभी इंटरफेस ऐसा है कि अभी हमने सर्विस प्रोवाइड किया है मार्केटिंग का, स्ट्रैटेजी उनको मार्केटिंग से लेकर पूरा ऑनलाइन बेस क्रिएट करके दिए, पर उनका आइडेंटिटी किधर न किधर चोरी होने को लगता है धीरे धीरे उसको रुकाने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग में इथिकल हैकर का हेल्प किया था। स्टार्टिंग में बंदा अच्छा करता था, पर जैसे लॉकडाउन का फेस आया तो बंदा रुक गया और वो रुक गया। तो फिर एक फेज ऐसा है मुझे कि सब एम्प्लॉय मेरे घर से थे, मैं भी घर पे था, फिर भी हम लोग को सर्विसेज चालू रखना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा सबमिशन हम लोग को करना पड़ेगा। तो उसके लिए एम्प्लॉय लोग ऐसा फ़ोन करके मुझे सर थोड़ा इशू हो रहा है, ग्रॉसरी लेने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, ये लेने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, वो तो फिर मैंने सोचा ठीक है चलो आज कुछ ना कुछ तो ट्राई करते देखते हैं। फिर उस टाइम पे मेरी मॉम को सिर्फ एक बात पूछी की मॉम मतलब मराठी में होता है की आई सध्या मला गरज आहे तर मग मी तुझे दागिने उसने भी मतलब गिरवी रखूँ क्या। तो मम्मी ने बोला ठीक है तेरे को जैसा लगेगा तू कर सकती है, क्यों तुझे आगे चल के मुझे बीवी को देने वाली तू रख सकता है कभी। तो मैं बोला ठीक है भाई। फिर लॉकडाउन में जितने दिन तक कंपनी को चालू करने की परमिशन नहीं दी थी तब तक की सैलरी मुझे अपनी जेब से देना पड़ा। और आज जब कभी सोचता हूँ वो इंटरफेस मैंने अगर शान देखा तो आज जो मेरे पास हो गया वो कभी नहीं है।
आपका प्रोडक्शन हाउस है, तो उसमें आपको क्या ऐसे स्टेप्स लेने पड़े कि बहुत हार्ड थे? इस फील्ड में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप अकेले काम नहीं कर सकते, और ये प्लस पॉइंट भी है बिकॉज यू नीड अ टीम। तो जो मेरा सबसे बड़ा स्टेप था वो था टीम बनाने का। एंड जैसे ही टीम बनती गई, नेटवर्किंग होती गई, लोगों से मिलता गया, तो और मेरा माइंड भी थोड़ा ओपन हुआ है, एक्सप्लोर किया मैंने। एंड उसके बाद अगर और टेक्निकली बात करूँ तो ऑफकोर्स धीरे धीरे स्टेप्स, बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट दिस फ्रॉम वेरी स्क्रैप। लाइक 1 रुपया मेरे को अपने पेरेंट्स वगैरह से नहीं लेता। जो एक्सेसरीज थी, इक्विपमेंट्स वगैरह, वो ऑफकोर्स मैंने पेरेंट्स से लिए थे, वो भी लॉकडाउन में लिए थे, तो ऑफकोर्स थोड़ा टाइट चल रहा था। बट धीरे धीरे आई ट्राई टू स्टैंड ऑन माई ओन, एंड वो स्टेप्स मेन यही थे। Thank you, Raj. Again, next question goes to you. आपने इतना अप एंड डाउन किया रहेगा, बट उसमें कोई तो एक पर्सन रहेगा ना जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। If I tell you from the very beginning, जब बिकॉज ये होता है कि पेरेंट्स एग्री नहीं करते, मतलब मेरा पूरा फैमिली एक वेडिंग प्लानर साइड से है, तो उनको जब मैंने बताया कि मुझे थोड़ा ये फिल्म मेकिंग लाइन में जाना है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट नहीं किया था, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो माई 11th-12th का फेस चल रहा था। तो उस टाइम में मेरे नाना ने नाना ने मुझसे ऐसा पूछा कि आगे का क्या प्लान है। मैंने बोला मुझे यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन साइड में परस्यू करना, बट मेरे पेरेंट्स नहीं मानते थे। तो मेरे नाना ने स्टार्ट किया था मेरा, बोला कि एक बार एटलीस्ट तुम जाके देखो। एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स गए थे, मम्मी मामा सब लोग गए थे, पापा मेरे एमपी थे। तो उसके बाद दे विजिटेड द इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बैकअप दिया यहाँ पे। एंड राइट नाउ आई डोंट हैव माई नाना, बट आई नो दैट ही मस्ट बी प्राउड बाय सीइंग माई सेल्फ हियर। एंड बस, और उसके बाद जहाँ पे मैं थोड़ा स्टेप्स पीछे गया, तो वहाँ पे मॉम डैड सब ने मुझे सपोर्ट दिया। एंड बस एक चीज़ का मिसिंग हो गया, आई विश कि ये और अच्छा कर सकता था। जो तुम लोगों को मैं थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगा, क्या इस एज पे ना दोस्त दबा के बनो, क्योंकि हर बार तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, मोरल सपोर्ट। बिकॉज तुम पेरेंट्स को बताओगे ऐसे होता है ऐसा होता है, पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट देंगे, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जैसे अभी अगर मैं अभी कहीं वीक पढ़ दूँ तो मैं हर बार पेरेंट्स को नहीं पूछ सकता। आई मस्ट हैव सम फ्रेंड्स जो मुझे बैकअप देंगे, तो हाँ, फ्रेंड्स का होना भी जरूरी है। रुपेश, आपके लिए आपका कोई मोटिवेशन आपको किसी दिया कि नहीं करना है? जैसे कि इन्होंने बोला कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। मेरे लाइफ में ऐसा एक भी पर्सन नहीं था जिसने मोटिवेट किया हो। मैं खुद गिरा और खुद ही हिम्मत बांध कर उठा एंड फिर चला। 10th तक मेरे ज़्यादातर कोई भी फ्रेंड नहीं रहे, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत सीरियस था, तो सब बोलने लगते थे क्या इतना सीरियस है एंड ऑल, कुछ भी बोलते थे, नाम रखते थे। तो लाइक मोटिवेशन तो कोई नहीं रहा है, बट मैंने खुद को मोटिवेट किया है। जब भी गिरता था तो ऐसा बोलता था खुद को कि रुपेश थोड़ा और, एंड जब भी थोड़ा और बोलता था कुछ ना कुछ अच्छा होता था, तो वो एक मोटिवेशन हो जाती थी मेरे लिए। मुझे गुजराती समाज ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं लायंस क्लब रहा हूँ, तो वो क्लब वालों ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत सपोर्ट किया है टेनिस लेने में, टेनिस भरने में। तो वो समाज में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे गुजराती लोगों ने। एंड सच में उनसे सीखने वाली बहुत सारी बातें, मैंने बहुत सारी बातें उनसे गेन की है। एंड यही था कि गुजराती जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किए अंदर से कुछ करने के लिए, एंड मुझे उनके साथ रहना भी बहुत पसंद है। Thank you, Rupesh. Vinayak, who is your motivator? Can you please share your views on this? माझे मोटिवेटर विचारतील तर मग पहिला प्रथम माझे वडील, कारण की ते गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये असताना पण त्यांनी मला बिझनेससाठी सपोर्ट केला, ती एक गोष्ट. आणि दुसरी ती माझी आई, जी 9वी शिकली पण तिने मला एवढं समर्थ बनवलं. आणि तिसरे जे माझे मोटिवेशन आहे ते छत्रपती शिवाजी महाराज. का अफजल जसा पाडलाय तसं संकटाला विसरत नसते.
ही यांची शिकवण. हर एक बिजनेस का एक मिशन होता है आपका, मिशन होता है, विजन होता है. जैसा आपका कुछ मिशन है, रुपेश आपका कुछ मिशन विजन है. हाँ है, मिशन एंड विजन दोनों भी है. एक इंसिडेंट हुआ था वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ. जैसे कि हम सब टीनेज में 70 to 25 की एज में सारे के सब स्टूडेंट जो है 70 to 25 की एज में. तो इस एज में जैसे कि मैंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग पर मैंने सेकंड स्टेप लिया था, डॉक्यूमेंट का ऑफिस ओपन किया था थाने में. बट एंड देन उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो कि पूरी तरह से तोड़ दिया था मुझे. 3 लाख का लॉस मैंने इन द एज ऑफ 18 किया था. वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा डाउनफॉल था. बट आज तक मेरे घर वालों को पता नहीं कि मैंने इतने बड़े लॉस किए थे. वो मेरी गलती थी. वो यूँ था कि मुझे एक मेल आया था फ्रॉम उत्तराखंड, जो कि स्टैम्प कंपनी की, जो उन्होंने मेल किया था. मेल में ऐसा मेंशन था कि मिस्टर रुपेश आपका ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ, ऐसे ऐसे. मैं अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि मुझे सिलेक्ट किए एज अ सब DSA पोस्ट. फाइनेंस का था वो. फाइनेंशियल की जो भी लोन पास होता है वो 5% में हम आपको करके दिलाना है एंड 30,000 पेमेंट प्लस आपको जो है वो है इंसेंटिव. तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया था कि नहीं अब तो मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है. और सो वहाँ पे कुछ दिनों बाद मैंने इंटरव्यू दिया, ऑनलाइन इंटरव्यू दिया, सारे डॉक्यूमेंट सेंड किए और उसके बाद मेरी ID बन के आई. सारे रियल प्रोसेस हुए जो कि रियलिटी में होता है. एंड देन उसके बाद मुझे बोला गया कि ऐसा ऐसा ऑफिस है, आपको इधर विजिट करना है. मैं गया वहाँ पे विजिट किया एंड देन उसके बाद मुझे बोला गया कि आपको अब लोन सेंक्शन करवाना है. तो मेरे लोधा के कुछ इन्वेस्टर्स थे एंड एडवोकेट थे, CA थे मेरे साथ. तो उनसे जाके मैंने डिस्कस किया था क्योंकि उनका CIN नंबर, सारे GST नंबर सब कुछ मेंशन था उसमें, तो किसी को भी डाउट नहीं आया. और फिर मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया. सर लोधा के उनके 100 करोड़ के उनके इन्वेस्टमेंट थे. तो मैंने उनको डायरेक्टली उनसे बात की कि सर मैं आपका 5% पे आपका ऐसे करवा दूँगा. उनसे मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी. तो मेरी बात होगी उनसे कि हाँ हम ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे. पूरी तरह से हो गया. मुझे 1 CR का टेंडर मिला, 1 CR का फाइल मिला जो कि मुझे 10 to 20 डेज में सेंक्शन करवाने थे. मैंने वो फाइल लिया एंड सारे डॉक्यूमेंट मैंने हेड ऑफिस में भेजे उत्तराखंड. सब कुछ स्टार्ट हुआ उनका. लाइक सिविल स्कोर चेक किया जाता है लोन लेते समय, आपका बैकग्राउंड केस है क्या नहीं सब चेक किया जाता है. तो उन्होंने सब चेक किया, रियल प्रोसेस हुआ. बट कहीं ना कहीं वो धोखा हो रहा था मेरे साथ. उन्होंने चेक करने के बाद फिर बोले कि रुपेश ऑल राइट, इनका सिविल स्कोर 700 प्लस है, ये काफ़ी अच्छे हैं, हम इनको लोन सेंक्शन कर सकते हैं, हम सेंक्शन लेटर भेजेंगे. उन्होंने मुझे सेंक्शन लेटर भेजा जो कि कोई बता नहीं सकता था कि ये फ्रॉड है. इतना बारीकी से उन्होंने सब चीज़ का ध्यान रख के भेजा. आज भी मेरे पास उनका सेंक्शन लेटर का मेल है. देन उसके बाद वो सेंक्शन लेटर लिया, स्टाम्प वगैरह लेना रहता है तो उसको मैंने निकाला, स्टाम्प वगैरह लिया एंड ऑल. उसके बाद मैं उनके पास पहुंचा, उनकी साइन वगैरह डॉक्यूमेंट कुछ स्टिक करने थे, डॉक्यूमेंट स्टिक किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था. ऐसा लग रहा था कि अब तो सेट हो गया है. लाइक 1 CR का था. इसके बाद हम डायरेक्टली गुजरात में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था, 100 करोड़ का था. तो उसमें डायरेक्टली 10% का मुझे मिलने वाला था. तो मुझे लगा आप कहीं ना कहीं में जाके सेटल हो गया, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. देन 3 लाख उनको मैं उनसे लिए मैंने थोड़ा करके एंड मैंने उनको प्रोसेसिंग फी के लिए दिया. देन 10 दिन बाद उनका जो रिस्पॉन्स था बहुत कम होने लगा एंड देन फिर उसके बाद वो थोड़ा रिस्पॉन्स कम देने लगे एंड फिर 15 डेज हो गया. उनका एक एडवाइज़र आने वाला था, लॉयर आने वाला था यहाँ पे चेक करने के लिए. मुंबई, उत्तराखंड से मुंबई आने वाले थे वो चेक करने के लिए कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी जो भी है रियल है क्या नहीं. बट 20 दिन 3 दिन वो भी नहीं आया. देन मुझे ऊपर से प्रेशर आया कि व्हाट इज दिस रुपेश, अभी तक कुछ नहीं हुआ है. बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया. तो मैं 2 दिन से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि इन द एज ऑफ 18 जस्ट छोड़ के गया था एंड मैंने इतना बड़ा फाइल हाथ में ले लिया. 3 लाख की बात थी, वहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं था एंड ऑल. तो फिर मैं मेरे अंदर था कि मुझे हार नहीं माना, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, करेंगे तो करेंगे. फिर एक दिन और रुका बट अब जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आ गया था. एडवोकेट ने मुझे नोटिस भेज दिया था कि ये जो है वो हो जाना चाहिए क्योंकि आपने इतना टाइम दिया.
नोटिस आने के बाद मेरे जो पसीने निकलने लगे, अब करना तो है, करना क्या। तो मैंने उसी रात को ट्रेन पकड़ी देहरादून, इन द एज ऑफ 18 देहरादून गया। मेरा एक दोस्त था साथ में, नाम नहीं बताना चाहता, इट्स ओके। वो उनको मैंने बोला था कि आप आधा प्रेजेंटेशन इसका देखो एंड मैं जो है वो क्लाइंट्स लाने का काम करूँगा। बोले 50-50 पे हमने बोला ठीक है, आप 50 रखना, मैं 50 रखूँगा, जो भी काम रहेगा आधा आप आधा मैं देखूँगा। वो हाँ बोले। उनकी एज लगभग 26 थी और उस टाइम मेरी एज 18 क्रॉस हुई थी। देन उसके बाद मैं और वो देहरादून गए। देहरादून में जाने के बाद वहाँ पे वो जो एड्रेस था वो चेक किए, तो वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग्स नहीं थी, कोई भी ऑफिस नहीं था, कोई भी। तो वो एकदम से शॉक बैठ गया कि अब करना है तो करना क्या है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए बैठ गया, फिर बोला ठीक है पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेन करके देखते हैं। वहाँ से पुलिस स्टेशन गए, कंप्लेन किए। जैसे हम पुलिस स्टेशन में एंटर करते हैं, वहाँ पे PSI वगैरह थे, PI वगैरह थे। मैंने ये बात किसी से अभी तक शेयर नहीं की थी, डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में गया। उनको जैसे ही वो कंपनी का नाम बताया, कावेरी बिजनेस सॉल्यूशन, उन्होंने मेरे पास फाइल निकाला और बोला देखो 25-25 लाख का ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, आप क्या ये 3 लाख लेके आ रहे हो। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, डिप्रेशन में लाइक जाने लगा। इतने में मेरा फ्रेंड बोलता है कि भाई मैंने आपको बोला था, रुपेश भाई मैंने आपको बोला था कि ये मत करो, बट आप नहीं सुने, आज देखो आप कहाँ पर। तो वो कम ये ज़्यादा शॉक लगा कि इतना बड़ा धोखा। फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर मैंने शांति से काम डाउन होकर सोचा एंड फिर मैंने कॉल किया, वापस मुंबई कॉल किया एंड बोला सर जो कंपनी है वो ड्यू टू कोविड 5% से 12% पे चलेगी, आप बोलेंगे तो सेंक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बट उन्होंने बोला नहीं करना है, आप 12% लेना है तो SBI वगैरह से ले लेंगे। तो 12% वो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। मैंने बोला ठीक है सर 90 डेज लगेगा। वहाँ पे मैंने वो डिसीजन, मेरा कहीं ना कहीं सही था। अगर मैं उनको डायरेक्टली बोल देता कि फ्रॉड हुआ मेरे साथ, तो शायद हो सकता था कि केस एंड आउट हो जाए। तो फिर वहाँ से हुआ एंड देन फिर हम मुंबई आए, देख लिए एंड फिर 2-3 महीने तो कुछ नहीं किया मैं। फिर उसके बाद फिर से एक स्टेप लिया था, ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई थी। थैंक यू रुपेश। विनायक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पेरेंट्स आपको अभी कैसा फील करवाते हैं, हाउ दे फील अबाउट इट? कसं आहे, आता पण त्यांच्यासाठी छोटं पोरगंच आहे, त्यामुळे आता पण जेवढं काय पण अचीव केले ते तरी मला त्याच पद्धतीने वागवतात जसं पहिल्यापासून वागवत. मी आता पण घरून निघायच्या पहिले ती सवय आहे मला लहानपणापासून की मी 1 रुपये देतो पप्पांकडनं किंवा 10 रुपये देतो. आता पण मी घरात जाईल त्यांनी ती 10ची नोट देतच होतो. आपके घर में ऐसा होता है, अब फैमिली ऐसा मतलब कि रिएक्ट अच्छे से करते हैं कि नहीं ये क्या चल रहा है ऐसा अबाउट योर बिजनेस? सी मेरी फैमिली पूरी बिजनेस वाली है। जैसे यहाँ पे लोगों को जॉब वालों को कैसे बोला जाता है कि अरे तू बिजनेस करेगा, मेरे घर पे अपोजिट होता है, मेरे घर वाले बोलते हैं अरे तू जॉब करेगा। तो यहाँ पे ऐसा भी है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है एंड मेरे पापा हर दिन, मेरा इंस्टीट्यूट अभी भी चालू है, तो मेरे पापा हर दिन बोलते हैं कि कभी भी फाइनेंशियली ऐसा मत सोचना कि हम लोग वीक पड़ रहे हैं, बिकॉज हम लोग, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर पूरा भरोसा है एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्टैंड कि हाँ मैं कुछ करके दिखाऊँ एंड बस उनका सपोर्ट रहता है बस। Thank you, Raj. Rupesh, next question is for you. Where do you see yourself in 2030 and what's your future plan? ओके वेल, प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा है एंड हमने एग्जीक्यूट कर चुका है। अभी मॉप मैजिक की जो हमारी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, और नेक्स्ट ईयर हम सोडा का फैक्ट्री डाल रहे हैं, टिटवाला में डाल रहे हैं। और जो प्लानिंग है वो 300 पीपल्स की, तो वहाँ पे हम जॉब देने वाले हैं। इन 2025 में 300 पीपल्स को ऐसे टारगेट है कि जॉब देना है तो देना है। 25 तक हम वो कर भी देंगे, वो स्टार्ट भी हो चुका है हमारा।
एंड वो 25 तक होना ही होना है एंड 2028 में जो प्लानिंग है वो 3000 है। अगर ये 300 तक पहुंच गए तो वो 3000 पीपल्स तक आराम से पहुंच जाएंगे, कोई इशू नहीं है। एंड ये 300 का जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। अभी जो है मेरे पास वो 17 वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं मेरे पास मेरी फैक्ट्रिया में एंड जो मेरे टूर्स एंड ट्रैवल है उसमें है अभी। तो मेरा जो मिशन है वो 2028 तक है। सो राज, आपको क्वेश्चन है कि आप 10 साल बाद किधर रहेगा, फिल्म इंडस्ट्री या ऐसा? पहले तो यहाँ पे 10 साल का तो मैं अभी फिलहाल इतना हाँ सोचा है मतलब मैं चाहता हूँ कि अगले 10 सालों में जो मेरा प्रोडक्शन है वो एक डिफरेंट लेवल का हो, बिकॉज इंडिया में बहुत वैरायटी के लोग हैं, तो हर वैरायटी को अलग अलग तरह का कंटेंट पसंद है। तो जैसे किसी को एजुकेशनल पसंद है, किसी को टेक्नोलॉजिकल पसंद है, किसी को कॉमेडी, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारे जॉनर को कवर करूँ, पहली चीज़। दूसरी, अपने इस सेमिनार हॉल में बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे, ऑफकोर्स कोई डिफरेंट तरह के होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म दे सकूँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बना सकूँ। एंड जितने भी कंपनीज है, जैसे जितना मैंने नोटिस किया कि अगर कोई ब्रांड है वो चाहता है कि उसको 3D में एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट चाहिए, जैसे डायरेक्ट चाहता है कि उसको एक 3D वीडियो चाहिए उसके ब्रांड के लिए जो उसकी वेबसाइट पे जाएगी। तो आई वांट कि इन द नेक्स्ट 10 इयर्स मैं अपने प्रोडक्शन से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स कर सकूँ, जैसे 3D, VFX, 2D एनिमेशन एंड सम ओपन माइक्स ऑल्सो। एंड आई वांट कि जैसे मेरे प्रोडक्शन में 500K का सब्सक्राइबर्स का जो लैंडमार्क है वो अगर जैसे मैंने क्रॉस किया तो आई एम गोना गिव a cafe to my entire team and also like सबको मैं एक खुद का कैफे करना चाहता हूँ, तो प्रोडक्शन के नाम से होगा। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जितनी ऑडियंस मेरी ऑफलाइन आएगी, जैसे रैंडम कोई भी आगे कैसा है उनको ऑनलाइन शिफ्ट कर सकता हूँ, जो ऑनलाइन की पब्लिक है उसको कैफे, उससे जनरेशन ये होगा कि साइकिल चलती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा गेन होगा ऑडियंस का। सोशल वर्क हम लोग कर सकते हैं एंड आई वांट टू कैफे के थ्रू मैं एम्प्लॉयमेंट और जनरेट कर सकूँ, जैसे भी CSB है चाय सुटा, तो वो बेसिकली फोकस करता है कि कूलर के बर्तन, मतलब कूलर के ग्लासेस, तो आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन हम लोग थ्रू लाइक मिट्टी से ही हो सकते हैं, या जितना ट्रेडिशनल है ना हम लोग वापस से वेस्टर्न को ट्रेडिशनल में लाने का चाहेंगे। Thank you, Raj, and all the best for your future. Same question goes to Vinayak. माझं कसं आहे की आमचा म्हणजे माझ्या टीमचा हा विचार आहे की आताची फक्त पोहऱ्यालाच आम्ही टार्गेट केलं, पण त्याच्या व्यतिरिक्त भारतामध्ये काही काही छोटे मोठे बिझनेसेस आहेत, त्यांना पण गरज आहे वरती येण्यासाठी. तर आताच्या कंडिशनमध्ये स्विगी, झोमॅटो त्यांनी पण म्हणजे की एका प्रकारे वसुलीच सांगू शकतो, काहीतरी घेण्यासाठी काही ना काहीतरी देवाचं मी स्वतः परमेश्वरांनी घडवलेली गोष्ट. त्याप्रकारे मग आम्ही हा विचार केला की छोटे बिझनेस आहेत ना त्यांच्यावरती जास्त फोकस करावा. का? कारण की हा छोटा बिझनेस उद्याकडे एक मोठ्या बिझनेसमध्ये जॉब बनतो, त्या टायमाला जो नाव घडतो तो त्या बिझनेसचा नाही, त्या बिझनेसच्या मागे जे हात आहेत त्यांच्यामुळे घडतो. आज आमचे पण बिझनेस छोटे आम्ही पण मान्य करतो, पण उद्याकडे आमची जी टीम आहे, आमचे सर्व कार्यकर्ते वगैरे जे कोण पण आहेत, आमच्या बरोबर प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक प्रेझेंटेशन ते पासून ते प्रत्येक सेल्सपर्यंत जी मेहनत करतात त्या मेहनतीला खरं मूल्य मी तर फक्त एकदा असंच बघतो का कारण की मला त्यांच्यामुळे नाव होतं. मी फक्त एक सुरुवात केली की मला आता हे करायचं, आणि एक काळात असा आलं की मला माझी कंपनी तिकडे बघायची, मी दाखवली. आता मी पुण्यापर्यंत बोलते, मला आता हळूहळू अजून पुढे पण जायचं. Thank you, Vinayak, and all the best for your future. Last but not the least, what would you suggest to our audience? जॉब करना चाहिए या बिझनेस करना चाहिए? बघा, पहिले तर मी बोलणार की तुम्ही पहिले जॉब करा. का? त्याचं पण एक उदाहरण देतो. जॉब केल्याने तुम्हाला 3 गोष्टी माहिती पडते. एक, टीम मॅनेजमेंट कसा असतो, दुसरी वागणूक कशी असते, सिनियर सोबत कसं रिस्पेक्टली बोललं जातं, क्लायंट आल्यावर क्लायंटला कसं मॅनेज केलं जातं,
त्या गोष्टी तुमच्या डोळ्याच्या समक्ष आहेत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तिसरी ही आहे ती आहे फंडिंग. तुमची जेव्हा स्वतःची फंडिंग तुम्ही लावतात ना तेव्हा तुम्हाला आहे ना त्या फंडिंगचं महत्त्व असतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला कळतं की बाबा त्याच्यामध्ये मी घडून किंवा कुठूनच नाही, त्यामध्ये मी माझा स्वतःचा खाण काढलेली गोष्टी आहे. त्याच्या मदतीने तुम्ही एवढ्या पुढपर्यंत जातात ना की तुम्हाला कोणीच थांबवू नाही शकेल. जॉब या बिजनेस एक्चुअली पहले तो आपको जॉब करना चाहिए बिकॉज वहाँ पे आप सीखते हैं कैसे क्या करना है. डायरेक्टली आपको बिजनेस कोई भी बिजनेस डायरेक्टली नहीं करना चाहिए. आप पहले अगर जॉब करेंगे, अगर कुछ स्टार्ट करना है तो उसके बेस पे अगर आप काम करेंगे तो आपको कोर पता चलेगा इसका कोर क्या है, रियलिटी पता चलेगा वहाँ जाके. तो आपको बेसिकली आपके हिसाब से आपकी जो कंडीशन क्या है एंड ऑल उसके हिसाब से आपको चूज करना है, क्योंकि आपके लाइफ में सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, हमारे लाइफ में सिचुएशन डिफरेंट है. बट ऑब्वियसली पहला जो स्टार्ट अगर आप बड़े लेवल से कर रहे हैं तो आप पहले जॉब कीजिए या फिर छोटा कुछ स्टार्ट कीजिए एंड देन फिर आगे बढ़िए. सब तो दोनों ने बोल दिया, बट जब मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैंने इंटर्नशिप्स किए कॉलेज से ही सुना, मैंने बोला गया था. तो इंटर्नशिप्स किए, मैंने सीखा है अलग अलग. एक प्रोडक्शन में मैं एक इंटर्न रह चुका हूँ. तो ज़रूरी है कि तुम अलग अलग जगह जाओ, सीखो एंड जितना एक्सप्लोर करोगे ना तो तुम्हें रीच मिलेगी, सबसे कॉन्टेक्ट्स मिलेगी. और वो कॉन्टेक्ट्स की हेल्प से तुम अपना बिजनेस सेटअप करके उसको एक्सपैंड कर सकते हो. तो बस यही है कि पहले थोड़ा एक्सप्लोर करो, अपने स्किल्स पे काम करो एंड जितना माइंड ओपन होगा उसके बाद तुम बिजनेस में और बेटर स्पीड से कर सकते हो. Wisdom through inspiring messages. We have only one motivator, one man who has a perfect vision for all the students. And so I request a man with a perfect vision, our respected chairman, Dr. C. फिर है ना, हम लोग वापस से वेस्टर्न को ट्रेडिशनल में लाने का काम करेंगे. Thank you, Raj, and all the best for your future. Same question goes to Vinayak. माझं कसं आहे की आमचा म्हणजे की माझ्या टीमचा हा विचार आहे की आताची फक्त पोह्यालाच आम्ही टार्गेट केलं, पण त्याच्या व्यतिरिक्त भारतामध्ये काही काही छोटे मोठे बिझनेसेस आहेत त्यांना पण गरज आहे वरती येण्यासाठी. तर आताच्या कंडिशनमध्ये स्विगी, झोमॅटो त्यांनी पण म्हणजे की एका प्रकारे वसुलीच सांगू शकतो. काहीतरी घेण्यासाठी काही ना काहीतरी देवाचं मी स्वतः परमेश्वरांनी घडवलेली गोष्ट. त्या प्रकारे मग आम्ही हा विचार केला की छोटे बिझनेस आहेत ना त्यांच्यावरती जास्त फोकस करावा. का? कारण की हा छोटा बिझनेस उद्याकडे एक मोठ्या बिझनेसमध्ये जेव्हा बनतो त्या टायमाला जो नाव घडतो तो त्या बिझनेसचा नाही, त्या बिझनेसच्या मागे जे हात आहेत त्यांच्यामुळे घडतो. आज आमचे पण बिझनेस छोटे आम्ही पण मान्य करतो, पण उद्याकडे आमची जी टीम आहे, आमचे सर्व कार्यकर्ते वगैरे जे कोण पण आहेत, आमच्या जोडीला प्रत्येक कार्य प्रत्येक प्रेझेंटेशन ते पासून ते घेऊन प्रत्येक सेल्सपर्यंत जी मेहनत करतात त्या मेहनतीला खरं मूल्य त्यांचं आहे. मी तर फक्त एकदा असंच होतो का कारण की मला त्यांच्यामुळे नाव होतं. मी फक्त एक सुरुवात केली की मला आता हे करायचं आणि एक काळात असा आलं की मला माझी कंपनी तिकडे बघायची. मी दाखवली, आता मी कोरियापर्यंत पोहोचले, मला आता हळूहळू अजून पुढं पण जायचं. Thank you, Vinayak, and all the best for your future. Last but not the least, what would you suggest to our audience? Job करना चाहिए या business करना चाहिए? बघा, पहिले तर मी बोलणार की तुम्ही पहिले जॉब करा. का? त्याचं पण एक उदाहरण देतो. जॉब केल्याने तुम्हाला 3 गोष्टी माहिती पडते. एक, टीम मॅनेजमेंट कसा असतो. दुसरी, वागणूक कशी असते. सिनियर सोबत कसं रिस्पेक्टली बोललं जातं. क्लायंट आल्यावर क्लायंटला कसं मॅनेज केलं जातं. त्या गोष्टी तुमच्या डोळ्याच्या समक्ष आहेत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तिसरी ही आहे ती आहे फंडिंग. तुमची जेव्हा स्वतःची फंडिंग तुम्ही लावतात ना तेव्हा तुम्हाला आहे ना त्या फंडिंगचं महत्त्व असतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला कळतं की बाबा त्याच्यामध्ये मी घडून किंवा कुठूनच नाही, त्यामध्ये मी माझा स्वतःचा खाण काढलेली गोष्टी आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही एवढ्या पुढपर्यंत जातात ना की तुम्हाला थोडीच थांबवू नाही शकेल.
जॉब या बिजनेस? एक्चुअली पहले तो आपको जॉब करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आप सीखते हैं कैसे क्या करना है। डायरेक्टली आपको बिजनेस, कोई भी बिजनेस डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। आप पहले अगर जॉब करेंगे, अगर कुछ स्टार्ट करना है तो उसके बेस पे अगर आप काम करेंगे तो आपको कोर पता चलेगा किसका कोर क्या है, रियलिटी पता चलेगा वहाँ जाके। तो आपको बेसिकली आपके हिसाब से आपकी जो कंडीशन क्या है एंड ऑल, उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है, क्योंकि आपके लाइफ में सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, हमारे लाइफ में सिचुएशन डिफरेंट है। बट ऑब्वियसली पहला जो स्टार्ट अगर आप बड़े लेवल से कर रहे हैं तो आप पहले जॉब कीजिए या फिर छोटा कुछ स्टार्ट कीजिए एंड देन फिर आगे बढ़िए। सब तो दोनों ने बोल दिया, बट जब मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैंने इंटर्नशिप्स किए कॉलेज से ही, सुना मैंने बोला गया था, तो इंटर्नशिप्स किए, मैंने सीखा है अलग अलग। एक प्रोडक्शन में मैं एक इंटर्न रह चुका हूँ, तो ज़रूरी है कि तुम अलग अलग जगह जाओ, सीखो, एंड जितना एक्सप्लोर करोगे ना तो तुम्हें रीच मिलेगी, सबसे कॉन्टेक्ट्स मिलेगी, और वो कॉन्टेक्ट्स की हेल्प से तुम अपना बिजनेस सेटअप करके उसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो बस यही है कि पहले थोड़ा एक्सप्लोर करो, अपने स्किल्स पे काम करो, एंड जितना माइंड ओपन होगा उसके बाद तुम बिजनेस में और बेटर स्पीड से कर सकते हो। Fine. Most important, whenever we have programs, it's very important that our entire program is a waste. If we are not going to hear wisdoms through inspiring messages, we have only one motivator, one man who has a perfect vision for all the students. And so I request a man with a perfect vision, our respected chairman, Dr. C.M. H.B. Vandikar sir, to address us all. दोस्तों, आज इट्स गोल्डन डे इन द हिस्ट्री ऑफ अचीवर्स दैट अपने ही बच्चे ऊपर बैठे हैं और मैं नीचे बैठ के सुन रहा हूँ। इससे बड़ा समाधान, इससे बड़ा अचीवमेंट इन माय लाइफ, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इट। जोरदार ताली बजाइए बच्चों के लिए। 2-4 साल पहले ये लोग भी इधर बैठते थे, आज इधर बैठे क्यों? I'll tell you certain steps which are very basic, right? First thing and foremost thing, you must decide what you want to do or what you want to achieve. Can you write your 100 dreams today night? आज एक सेपरेट नोटबुक करके आपके 100 सपने लिख सकते हो क्या? Yes or no? Yes. So that will, that is a starting point of setting up your mission and vision. I want to do this, I want to become this, I want to learn this, I want to achieve this, I want to see my mother at this level, I want to give these comforts to my father, I want to become what, right? This is number one. Number two is you should decide that yes कि मुझे बिजनेस करना है, right? और उसका पहला स्टेप ये हो सकता है कि आप इंटर्नशिप करो और आप किधर नौकरी करो, एंड दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। नंबर 3 इज राइट योर स्ट्रेंथ्स, राइट? कोई लोग बोलने में अच्छे रहते हैं, कोई दिखने में अच्छे रहते हैं, कोई लोग बोल बच्चन होते हैं, कोई लोग राइटिंग में अच्छे रहते हैं, कोई कन्विंसिंग में अच्छे होते हैं। अपने को पिताजी से कुछ चाहिए रहता है, कैसे कन्विंस करते हो? That is, if you can convince rightly, नहीं तो बहुत सारे लोगों को मम्मी का सपोर्ट लेना पड़ता है। So if you are good convincer, you are a marketing guy, और आप कुछ भी बेच सकते हो और अपनी डिमांड पूरी कर सकते हो। So write your 10 strengths. What are your strengths? What you are good at, right? Write your 10 weaknesses. मेरा वीकनेस है, मेरा हैंडराइटिंग खराब है, अभी भी मेरा वीकनेस है। और write your 10 weaknesses. Look, this thing, confidence कमी आ रही है, whatever. Write your weaknesses, okay? Then write 10 opportunities for you. 10 opportunities मेरे लिए क्या-क्या opportunities हैं? अपने पास incubation center है, right? अपने ये दोस्त है, अपने relative ये लाइन में है. These are all opportunities. और write certain threats that मैंने कुछ भी नहीं किया तो शादी हो जाएगी और किचन में मैं मेरे को देखूंगी। That is your threat. Boys,
अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो किधर तो भी नौकरी करनी पड़ेगी, जिंदगी भर 9 to 5 में लगे रहोगे। ओके, सो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप अपने 100 सपने लिखने हैं। सेकंड स्टेप, राइट योर SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, बोलो क्या है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, राइट। ये नहीं किया तो क्या होगा, जान देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। थर्ड थिंग इज फाइंड योर कोर कॉम्पिटेंसी, क्या कर सकते हो, किस में आप काबिल हो और वो काबिलियत आप कैसे डेवलप कर सकते हो, क्या अपने को अच्छा लगता है, देखो, राइट, एंड स्टार्ट चेसिंग इट। जैसे इसको मैंने देखा है पहले से कि सर सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के देता हूँ अच्छी उस कॉलेज में, ओके, सो दैट वाज हिज पैशन, पीछे पड़ा, फिर आया, देन ऑर्डर लिया, कॉलेज से ऑर्डर लिया, बाहर से भी उसका बिजनेस चालू हो गया, एंड यस डन। जैसे इस लड़के के पास वो अंदर से ही दिखता है, तीनों के चेहरे पर हंसी दिख रही है, आप लोगों को एक सेटिस्फैक्शन की लहर दिख रही है, यस और नो, यस, कुछ करने की अंदर से आग दिख रही है, वो आग लगनी चाहिए, इतना ध्यान में रखो। जब आग नहीं लगती है ना, इफ यू आर इन कंफर्ट जोन, डैडी रोज 100 रुपए का हफ्ता दे रहे हैं अपने को, सुबह लेते हो ना, कितना लेते हो रोज डैडी से, 100, 150, 50, 20 रुपए, तो भी ठीक है, तो भी लेता है ना, राइट, उसकी कीमत करो, ट्राई टू सेव आउट ऑफ इट। फोर्थ थिंग इज, आज सोफिया मैडम, हम लोग लाइब्रेरी जोन में और इंक्यूबेशन सेंटर में मेरे पास 150 धंधे के प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़े हैं, 150 धंधे के प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़े हैं, वो मैं रखवा देता हूँ, राइट, और स्टार्ट स्टडी इट। एक बिजनेस के लिए क्या लगता है, कौन सी मशीन लगती है, उसका रॉ मटेरियल किधर मिलता है, उसकी मशीन किधर मिलती है, उसके लिए कितना पैसा लगता है, देन फाइंड आउट हु कैन फाइनेंस यू, अपने ऊपर कौन पैसा लगाएगा, ऐसा लगता है आपको आपके ऊपर कोई पैसा लगाएगा, नहीं, अगर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है लोगों में तो अपने को कैसे बिहेव करना पड़ेगा, यस, याला मम्मीनी बांगड्या काढून दिल्या ना, का तुम्हाला काढून देईल का, हो ना, हो, ते केव्हा वाटेल की माझी पोरगी गुणाची आहे, माझा पोरगा कुठे जाऊन दारू पिणार नाही, इकडे तिकडे पडणार नाही, फालतू व्यसन करणार नाही, करेल ते चांगलंच करेल आणि ते सोन्याची बांगड्या परत आणून देईल, राइट, वैसे ही अपने रिलेटिव्स भी देखो, देन हैव केस स्टडीज, घूमो, इंस्टेड ऑफ मोबाइल है ना, ये मोबाइल कितना स्क्रीन टाइम है आपका, स्क्रीन टाइम संडे को आता है ना 6 घंटा 7 घंटा या 20 मिनट 25 मिनट, फाइंड आउट, रिड्यूस दैट एंड स्टडी पीपल अराउंड यू, स्टडी पीपल अराउंड यू, ओके, स्टडी पीपल अराउंड यू, उसका मतलब ये है कि जाके लोगों से मिलो कि आप सक्सेसफुल कैसे बने, और जाके ऐसे भी लोगों से मिलो की सर तुमचं असं कसं झालं, तुम्ही का फेल झाले, कैन यू लर्न व्हाट टू डू फ्रॉम दिस पीपल एंड व्हाट नॉट टू डू। एक ने अपने को बताया 3 लाख का खड्डे में गया, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस था, आग थी, इसके लिए वापस ऊपर आया, राइट। बेसिक क्वालिटीज, यू मस्ट बी हार्ड वर्किंग, आर यू रेडी टू वर्क फॉर 14 आवर्स अ डे, यस, हार्ड वर्क करने को तैयार हो, राइट, क्या आप ऑनेस्ट हो, जोर से बोलो यार, यार ऑनेस्ट आदमी ऐसा छाती बुला के बोलते हैं हाँ मैं ऑनेस्ट हूँ, ओके, नो चीटिंग, राइट, इनकल करो अपने आप में कि किसी को फंसाऊंगा नहीं, राइट, किसी का माल लेके सेठ नहीं बनूंगा, whatever money I receive from people, उससे ज्यादा उनको उसका रिटर्न दूंगा, ओके, तो ही लोग अपने ऊपर पैसा लगाएंगे। सो ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड ABCD है सक्सेस का। A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स अपने इसने बोला ना दोस्त बनाओ, खिळा पाण्यात टाकला तर उडतो का तरतो, खिळा लोखंडाचा खिळा पाण्यात टाकला तर बुडतो, खिळ्याला खिळा बांधून पाण्यात टाकला तर
तो पण बुडतो. पण खेळा लाकडावर ठोकला आणि आता पाण्यात टाकला तर आपण कशाची दोस्ती करायची गरजेल्या खेळाची का चंदनाच्या लाकडाची? यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. अपने आजू बाजू में जो 5 लोग हैं उसमें आप अच्छे नहीं एवरेज हो सकते हो. सो ए फॉर क्या बोला? एसोसिएशन. बी फॉर बिलीफ. राइट? हैव फेथ इन यू, हैव बिलीफ इन whatever God or whatever people you have around you. ओके? और अपने आप में कॉन्फिडेंस भर भर के आप यू नो उसके ऊपर विश्वास रखना चालू करो. एंड सी फॉर कमिटमेंट. बी कमिटेड टू युअर लाईफ. माझ्या कुटुंबात कोणीच असं केलं नाही पण मला दिवे लावायचे. कशा प्रकारचे? चांगले. राईट? कोणतरी वेगळं व्हायचंय. यू नो माझ्या अख्ख्या फॅमिलीमध्ये मी एकटा आंदोलन आहे. अँड डी फॉर डेडिकेशन. यू मस्ट डेडिकेट फुल्ली टू युअर ड्रीम्स. ओके? सो ए फॉर त्यांचा व्हिडिओ काढ माझा नको. बी फॉर, सी फॉर एंड डी फॉर. बस ये चार चीज रहेगा ना तो आपका लाइफ शुरुआत हुआ है. आज का जो सेशन इज आई ओपनर. थैंक यू वेरी मच फॉर BMS डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल सेशन. अभी आप यू नो यू कैन आस्क देम मेनी क्वेश्चंस. सुरुवात कशी झाली, कसे पडले, कशी ठेच लागली, पुढे कसे गेले, कुठून फायनान्स. राईट? आता विचारायला लाज वाटत असेल तर ते इथेच आहेत अजून 15 मिनिटं. यू कैन हैव, यू कैन टेक सेल्फी विद देम. राइट? मुझे भी तेरे जैसा बनना है. तो एटलीस्ट रोज वो सेल्फी ना उधर रखने का मोबाइल में, रोज देखने का. राइट? एंड इसने एक और चीज बोला, शिवाजी महाराज. यू नो शिवाजी महाराज सक्सेसफुल. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची शपथ कधी घेतली? वयाच्या 16व्या वर्षी. ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरी कधी लिहिली? 16व्या वर्षी. यू नो ते सगळे 16व्या वर्षी आपलं ते निघून गेलंय 16 वर्ष. आता 17, 18, 19 ला आले तुम्ही तर आता तरी करा. आणि शिवाजी महाराज सक्सेसफुल का झाले त्याचं आणखीन एक कारण सांगतो तुम्हाला. शिवाजी महाराजांकडे अष्टप्रधान मंडळ होतं. 8 त्यांचे कन्सल्टंट होते. अँड टुडे ऑल्सो आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हॅव 8 कन्सल्टंट्स अराउंड यू. चार्टर्ड अकाउंटंट, एक एडवोकेट, एक फाइनेंसर और बैंकर, चौथा एक पुलिस वाला जो कभी भी अपने काम आए. जैसे पुलिस स्टेशन गया कोई इधर से इधर का कमिश्नर का उसको फोन जाता था तो. ओके? देन गुड फ्रेंड्स. ओके? देन 5 to 10 people who will invest on you. Clear? Then you know गुड स्पाउस बोलते हैं उसको. बट आपका वो एज नहीं है. प्यार भी करना है तो बाद में करो बट अच्छे लोगों से करो. ओके? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बैंकर. राइट? कितने लोगों का बैंक अकाउंट है? कैंप लगवा देता हूँ HDFC बैंक का, बाकी लोग बैंक अकाउंट खोल दो. राइट? स्टार्ट गोइंग टू बैंक. मम्मी से 20 रुपया लेता है ना, या 10 रुपया बैंक में जमा कर. 100 रुपये का नोट मोबाइल में रखा है. चले इन्वेस्ट करेगा तो 200 होएगा उसका. राइट? डोंट कीप योर फंड्स आइडल. व्हाटएवर मनी यू हैव, यू नो you can spend only 30% on your aishwarya और मजा. 70% you must invest in something. अगर इन्वेस्टमेंट की अक्कल नहीं है तो बैंक में डालो. तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा फटाक से इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है? तो ये सब चीजें ध्यान में रखो. ऑल द बेस्ट टू यू. वंडरफुल सेशन. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू नो. कितने लोगों को इधर बैठना है 2-3 साल के बाद? फोटो उनका निकाल एक बार. हाँ हाँ मालूम है ना. तो क्या करंट स्टूडेंट है मालूम है तो भी इधर बैठना है ना. शाबाश. और आपके लिए अचीवर्स कॉलेज के दरवाजे खुले हैं. नंबर 1. नंबर 2 दिनेश इस्लामी सर आते हैं. उनसे बात कर सकते हो. मुझसे भी कभी भी बात कर सकते हो अपॉइंटमेंट लेके. सर मैं सैटरडे 5 बजे आपको मिलने को आ रही हूँ. टॉक टू मी.
राईट यु नो क्या करना आहे असं समजेल सर मी काय करू मला समजत नाही त्यात पण 3 गोष्टी लिहा सर मी हे पण करू शकते हे पण करू शकते हे पण करू शकते आता सांगा मी ह्याच्यातलं काय करू देन आय बी एबल टू काय डोंट कम प्लॅन सर काय करू ते असताना कुठेतरी दुखतंय सर कसं तरी होतंय है ना डॉक्टरकडे जातो ना डॉक्टर 3 विटॅमिनच्या गोळ्या लिहून देतो जा बरं आपल्याला वाटतं डॉक्टरनी गोळ्या दिली आता बरं वाटतं तसं नसतं इसलिए आज है ना जाते टाइम 100 रुपया है क्या 50 रुपया है आपके पास 30 रुपया है एक नोटबुक लेके जाना घर पे बस माय गोल बुक एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन क्लियर जोरदार तालियां बजाइए आपके एक छोटा सा इंसिडेंट बताना है जस्ट बिफोर 7 months on 17th of February एक कंपटीशन हुआ था अबाउट बेस्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन प्लीज कंटिन्यू करना छोड़ना मत इनको फोटो निकालो तो जस्ट 7 months पहले मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे पैर रखा था एंड उस दिन मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट मोमेंट लिया था तब याद होगा आपको CRM एंड आफ्टर 7 months मैं वहाँ से यहाँ आया तो वहाँ से यहाँ आना मुश्किल नहीं है बट वहाँ से आप पहुँचना एफर्ट्स लेता है बट बहुत मुश्किल भी नहीं है बस करते रहो Thank you, Raj, for sharing your experience. Thank you. Thank you. मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है आप सभी को जैसे कि आप सभी सेम एज के हैं सो एक मैसेज है कि इन द एज ऑफ जैसे कि सर ने बताया कि एज 70 to 25 का जो एज होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है इस एज में आपकी एनर्जी आपका काम करने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है सो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए मस्ती मजा सब कीजिए बट करियर को इग्नोर मत कीजिए ये जो एज है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है 25 के बाद करते हैं लेकिन ये जो एज है इसमें बहुत ज़्यादा पावर एंड एनर्जी होती है थैंक यू सो मच असं संकेत करायला सांगितलं की हा जो एज कॅटेगरी हा जरा जास्तच आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट असतो का तर या एजमध्ये आपण स्वतःला स्किल अप करू शकतो आपण स्वतः खूप सारं नॉलेज गेन करू शकतो रिसर्च करा सोशल मीडिया वगैरे त्याचा दुरुपयोग पण आहे आणि उपयोग पण आहे त्या उपयोगच्या मार्गावर चाला ज्या टायमाला तुम्हाला काही ना काहीतरी भेटत जाईल ना प्रश्न तुमच्या डोक्यामध्ये येतील त्या प्रश्नाची उत्तरं गुगल करा गुगलला विचारा ही गोष्ट अशी काय या गोष्टीचं कारण काय आणि गोष्ट कितपर्यंत समित आहे ते सर्व उत्तर तुम्हाला गुगल पण प्रोव्हाइड करेल सोशल मीडियावरती खूप सारे कंटेंट क्रिएटर पण आहेत जे फायनान्सच्या बाबतीत सांगतात फायनान्सवाल्यासाठी ते इम्पॉर्टंट आहे परत बँकिंगसाठी सांगतात लॉसाठी सांगतात परत सेविंग्स कशी करायची त्याच्यावरती पण सांगतात खूप सारे कंटेंट क्रिएटर्स आहेत त्यांना फॉलो करा जेवढा तुमचा नॉलेज तुम्ही स्किलअप करते ना तेवढा तुम्हाला येणाऱ्या फ्युचरमध्ये खूप इम्पॉर्टंट होईल आता पण आम्ही पण स्वतः कधी ना कधी येण्यासाठी जाण्यासाठी मोटिवेशनल व्हिडिओ बघतो कधी पण आम्हाला डाऊन फील झाला त्या टायमाला आम्ही गाणी वगैरे सर्व काय ऐकतो पण तिथपर्यंत त्याचा उपयोग दुरुपयोग करू नका खरं सांग एखादा सेल्फी काढण्यासाठी तुम्ही कुठं ना कुठं जाऊन उभे राहता त्याच्या पुढं काय कारण दरी असते ती दरीच्या समोर तुम्ही उभं राहील थोडासा माइंड सेटला आयुष्य करा त्या गोष्टीवरती पण लक्ष द्या फक्त 500 लाईकसाठी तुम्ही एक फोटो घेता ना तो फोटो पण तुम्ही एवढा इम्पॉर्टंट मानता त्यामध्ये पण तुमचा चेहरा नीटली नाही आला किंवा काय नाही आलं तर त्या चेहऱ्याच्या नीटली येण्यासाठी पण कारण काय होतं तुमच्या स्वतःची चुकी होती ना आजची चुकी तुम्हाला उद्या भाग पाडावी नाही त्या गोष्टीवरती लक्ष द्या If you have any doubts, you can ask them. My question is to Mr. Raj. What is your strength, weakness, opportunity and threat? ये थोड़ा रिवीलिंग बट मेरा स्ट्रेंथ ये है कि थोड़ा मैं क्रिएटिव ज़्यादा हूँ एंड जितना मैंने एक्सप्लोर किया ना तो आई फील कि हाँ मैं थोड़ा इंडस्ट्री लेवल पे काम कर सकता हूँ मेरा वीकनेस सबसे बड़ा ये है कि मैं सिंगल पर्सन हूँ सिंगल मतलब वही है कि ना मैं कैमरे के सामने अगर हूँ अगर मैं एज अ एक्टर हूँ
तो कैमरे के पीछे मेरे पास बंदे नहीं है। तो हाँ, मेरा एक वो वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज मोर ऑफ अचीवर्स कॉलेज बहुत देता है एंड जितना इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर सकता है मुझे मजा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और थ्रेड्स ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, बड़ा एक वीकनेस सबसे बड़ा जो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो हाँ, वो वीकनेस, बट उसको भी मैं जल्दी कवर अप करूँगा। थैंक यू। Thank you so much, Raj, Rupesh, and Vinayak for joining us, and it was nice to interview you. I hope everyone got inspired. Yes? Yes or no? Yes. So, don't worry, we'll wind it up. I request, now see, guests आते हैं तो उनका felicitation important है, they're inspiring us so much, right? So I request our principal ma'am to felicitate our today's speakers, our guests, our students, many things. So, entrepreneurs of, okay, so thank you guys, really we enjoyed it. It was really an inspiring story. हम आपको सिखाते थे, आज आपने हमको बहुत कुछ सिखाया, so thank you so much. So I request our principal to first felicitate our very young CRM जिसने famous किया था हमारे कॉलेज में, राज सोनी को. Put your hands together everyone. Thank you, dear students. Yes, so we come to an end of our program, and for that, to end up in a very formal way, I request Rajanta Himaye from FIBMS to propose the common board of thanks. Warm evening to all the dignitaries, teaching, non-teaching, and all my dear friends. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on 19th Young India series. I, on behalf of Department of Management Studies, extend some hearty gratitude to our Honorable Chairman, Dr. C.A. Mahesh Vivandikar sir, for their inspiring words and guiding us to be a successful achiever. A big thank you to our strong pillar of our college, respected Principal Ms. Sophia D'Souza ma'am and Vice Principal Ms. Sana Khan ma'am, for always motivating us and guiding us in every obstacle we face. Sincere thankful to Raj, Vinayak and Rupesh for sharing your crucial time with us and sharing your experience. It was a wonderful and inspiring to listen all your ups and downs you had in your life. I am also thankful to the Department of Management Studies, especially teaching and non-teaching staff and a wonderful student audience. Sincere thanks to the technical team for your all-time support. Thank you once again and have a beautiful weekend ahead. Thank you.